नमस्कार, मैं हूं दीपिका एस लिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने 49वें वंगला फेस्टिवल के दौरान राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। ये वार्षिक पोस्ट हार्वेस्ट थैंक्सगिविंग फेस्टिवल गारो कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है, जिसे 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व है और हम इसे संरक्षित और प्रचारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अनेक पहल शुरू की है ताकि स्थानिक संस्कृति और परंपराओं पर रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ावा दिया जा सके। USTM for the Jimbert Kemara, Jiana China Dalni some system Rako Naha, Monday ya azema do onis kigpa tik tak agenda sokina niagana leading way, and I think we can make out from the dance here. I think many of us feel like joining them, but I think this is not the right time yet. We will have to wait till 8 to join the dancers and really have it a go. Such a beautiful sight, simple yet captivating. And the rhythm, I think, is just
calling and inviting us. But I think I will allow you. Wangala Festival ko nami cry al nami sukate at sindalo manina manina Meghalaya ni aro India ka mo ni dentang biap ranguni ya adsuni jatni ya festival bakura na adsuni Wangala sokka prangkuni na adsuni sa anirangko sa na adsuni gift rangko music rangko knana aro adsuni culture ko masina manderang dalo supay na. Uni naman PWD, dentang mansa. Wangala Organizing Committee ni member ang ni request ko ang wala sukata. Aga seconds na ba nga chansija. Immediately come ka at bo. Ani ang order ko na ha. मेघालय से सीमेंट और क्लिंकर का ट्रांसपोर्टेशन 27 अक्टूबर से पूरी तरह रुक गया है। मेघालय कमर्शियल ट्रक ओनर्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन MCTODA के स्ट्राइक के कारण इस बंद से जायंट हिल्स के सभी बड़े सीमेंट प्लांट से सप्लाई रुक गई है, जिससे मेघालय और पूर्वी भारत के अन्य राज्यों में सीमेंट की कमी हो गई है। MCTODA की मांग है कि सीमेंट और क्लिंकर की ट्रांसपोर्टेशन पर सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए रेट लागू किए जाए, लेकिन सरकार ने कहा है कि मेघालय दूसरे राज्यों जैसे असम के लिए रेट नोटिफाई नहीं कर सकता। ईस्ट जायंट हिल्स के डीसी शिववांश अवस्थी ने बताया कि 27 अक्टूबर के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू की। 30 अक्टूबर को क्लेरियट के डीसी ऑफिस में मीटिंग हुई, जिसमें जायंट हिल्स सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जायंट हिल्स ट्रक ओनर्स एसोसिएशन और ईस्ट जायंट हिल्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भाग लिया, लेकिन MCTODA ने मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया। बाकी दोनों संगठनों ने लिखित रूप में कहा कि उनका ट्रांसपोर्टेशन काम नॉर्मल चल रहा है और वो स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं करते। Have also been following those rates. They informed us during the meeting, and they informed MCTODA also that they have been following those rates that have been notified by Government of Meghalaya as far as intrastate transport is concerned, and they are already working with these two associations, and they are willing to work with them also in future. As far as the interstate rates are concerned, there is no such act which allows which empowers the state government to notify interstate transport rates. So that was clarified to MCTODA during the meeting,
those rates are dependent on the consignor and the transporter based on their mutual agreement, depending on the distance, depending on the location, as well as the market fluctuation. So that was the appeal from the side of Jaintia Hills Cement Manufacturing Association, that they are willing to discuss these rates also, because this will require complex discussion. All rates cannot be fixed for interstate transport in a single meeting, and they have accepted all their demands. So they also requested the MC TODA to withdraw their strike and come for further negotiations with respect to this interstate transport rates. So, however, MC TODA declined to withdraw their strike during the meeting, as till the time a fixed interstate transport rate also is given to them by the cement factories. So, after the meeting, we received reports that MC TODA had been obstructing the vehicles of cement factory and other transport associations, and certain reports were received with respect to harassment of some drivers and vehicles which are not participating in the strike. So, because of this, the district police of East Khasi Hills had to take action as per law to ensure free movement of goods, vehicles, and also to ensure public safety on the national highway. So, I would again, from this medium, I would like to appeal to MC TODA that while we understand their concerns, and we are still open, and we are always open for dialogue and with all the stakeholders, so that we can find a peaceful resolution to this, to their concerns, to their demands. At the same time, we also request them not to obstruct the vehicular movement on the national highway further. Thank you. Taken by the district police of East Khasi Hills based on whatever was the situation. Because that action was taken by the police of East Khasi Hills district based on the situation on ground, and depending on whatever charges are, and now the law will take its own course, and right now I am not in a position to comment on that as the Deputy Commissioner of East Jaintia Hills. Okay. With respect to this ongoing strike called by Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MC TODA against cement factories from 27th October onwards, so I wish to inform all of you that district administration acted promptly, and on the 30th of October we called a meeting of all stakeholders, including Jaintia Hills Cement Manufacturing Association, MC TODA, and other two transport associations, Jaintia Hills Truck Owner Association as well as East Jaintia Hills Truck Owners and Transporters Association. But unfortunately, MC TODA declined to attend meeting on that day, saying that they would want to attend meeting separately with the Cement Factory Association, not in the presence of other two associations. However, the other two associations attended the meeting that day, and they informed us that they are not supporting the strike called by them, and they are working cordially with the cement factories, and they wish to continue the movement of their vehicles. So, however, to find a peaceful solution for this, we accepted the demands of MC TODA and again reconvened the meeting on 31st of October as well as 3rd of November with MC TODA separately along with Jaintia Hills Cement Manufacturing Association. So during the meeting on 30th and 31st and 3rd November, MC TODA expressed various concerns with respect to the transports, with respect to the cement factories. Their main demands were regarding fixation of interstate transportation rates and priority to the local truck drivers, reduction in the waiting time and loading time, and also certain regulations with respect to labor laws to be followed by the cement factories. So during the meeting, cement factory also has given a written reply to all their demands, wherein they have accepted all their demands. Only with respect to the fixation of interstate transportation rate, they clarified that there is a rate notification by Transport Department, Government of Meghalaya, which is with respect to the intrastate transport rates under Motor Vehicle Act 1988. So under this act, any state government can notify transportation rates. INS इक्षक 4 सर्वे वेसल लार्ज शिप्स में से तीसरी शिप है। ये शिप हाइड्रोग्राफिक डेटा जनरेट करती है जो कि नेवल ऑपरेशंस जैसे सबमरीन्स के लिए और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी है। और सभी सामान्य अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया निशान समारोह के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। अन्य अतिथियों से भी अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वर्दी में उपस्थित सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि जब बैंड राष्ट्रगान बजाए तो वे सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सिविक बॉडीज को निर्देश दिया है
कि हाईवेज और सड़कों से स्ट्रे कैटल को हटाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य और यूटी हाईवे पेट्रोल टीम बनाए जाए जो इन स्ट्रे कैटल को पकड़कर शेल्टर होम्स में रखे जहां उनकी देखरेख की जा सके। पार्टी इन पर्सन को मैंने रिप्रेजेंट किया, भूपेंद्र सिंह जो कि इसमें एडवोकेट है और विक्टिम भी है। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है जितने भी नेशनल हाईवे पे हैं जो भी कैटल्स हैं और जो भी स्टेट डॉग्स हैं उनको इमीडिएट रिमूव करने के लिए ऑर्डर कर दिया है। इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और पीडब्ल्यूडी को भी दी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी दी है। 8 वीक के अंदर इनको हटा दे। और जो भी संस्था है, सरकारी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें भी जो डॉग्स के केसेस काफी हाई रेंज पे हो रहे हैं, तो इसको देखते हुए इमीडिएट उन्होंने नोडल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, जिसमें कि कोर्ट ने यही बोला है कि नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी उनको इमीडिएट हटाएं और ऑर्डर कंप्लाइंस करें 8 वीक के अंदर। बंगाल में एसआईआर ऑपरेशन शुरू होने के बाद कई अवैध बांग्लादेशी मुसलमान जो वहां रहते थे अब मेघालय और असम के रास्ते वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। इस वीडियो में दिखाए गए किसी के पास भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। দেখতে পাচ্ছেন এগুলা একটা ডকুমেন্টস ঠিক নাই, তাই সব বাংলাদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, রাতারাতি নদী পার হচ্ছে, তার সাথে আমারও ডকুমেন্টস নেই। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रस्तुत की। पटना बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वंदे मातरम 150 एक सोशल मीडिया अभियान के रूप में चलाया जाएगा जहां लोग अपनी अपनी भाषा में वंदे मातरम लिखकर राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करेंगे। सरकार ने इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जीवन हो इसके लिए एक अभियान चलाया जाएगा। ये फिजिकल फॉर्म के साथ साथ डिजिटल फॉर्म में भी चलेगा। वंदे मातरम 150 नाम का एक सोशल मीडिया अभियान भी हर भाषा में चलाया जाएगा, जहां अपनी अपनी भाषा में वंदे मातरम लिखकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कई सारे राजनीतिक दलों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और देश की चेतना के पुनः जागृति के ये महामहोत्सव में हिस्से लेने वाले लोगों ने भी कार्यक्रम किए हैं। मित्रों, वंदे मातरम एक प्रकार से आनंद मठ नवलिका का एक हिस्सा है। वंदे मातरम ये बाद में आजादी के आंदोलन का उद्घोष बना। 1936 में बर्लिन ओलंपिक की फाइनल के पहले अपनी ओलंपिक टीम ने, हॉकी की टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया, तभी ये निश्चित हो गया था देश जब भी आजाद होगा ये एक राजनीतिक सूत्र बनने की जगह पूरे देश को एक रखने का और देशभक्ति को हमेशा जगाने का एक कारण बनने वाला है। 15 अगस्त 1947 को 6:30 बजे सरदार पटेल के आग्रह पर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने पूरा वंदे मातरम गाकर आजाद भारत के हृदय के पहले स्पंदन को झंकृत करने का काम किया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जब अंतिम बैठक समाप्त हो रही थी, जयपुर राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ पर मशाल मार्च निकाला। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा।
लखनऊ के एक अदालत ने वकील परमानंद गुप्ता को 12 साल की सजा और 45,000 का जुर्माना सुनाया है SC/ST एक्ट के तहत झूठे केस फाइल करने के दोष में। अदालत ने पाया कि गुप्ता और उनकी साथी पूजा रावत ने SC समुदाय के लोगों के नाम पर झूठे FIR दर्ज करा के दोष मुक्त लोगों को फंसाया और सरकारी मुआवजा लेने की कोशिश की। A Lucknow court has delivered a historic verdict against the misuse of the SC/ST Act. Advocate Parmanand Gupta, along with Pooja Rawat, had filed 11 fake SC/ST cases against multiple individuals to harass and blackmail them. After a detailed investigation, the court found that the cases were completely false and amounted to a serious abuse of law. In a strong judgment, the court sentenced Parmanand Gupta to 12 years of imprisonment and imposed a 45,000 rupees fine. Pooja Rawat has been ordered to return the compensation she received under the false claims. The court noted the SC/ST Act was meant to uphold justice and equality, not to be used for personal gain or extortion. This verdict sends a clear warning to those who misuse protective laws and a reminder that justice must never be weaponized for greed. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी शिक्षण स्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशन के आसपास से स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए और स्टेरिलाइजेशन के बाद उन्हें वहां वापस नहीं छोड़ा जाएगा। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने कहा, यह फैसला असंभव है। अगर 5,000 कुत्ते हटाए जाते हैं तो उन्हें रखा कहा जाएगा। इतने शेल्टर्स और लोगों की उपलब्धता नहीं है। ये तो जस्टिस पारदीवाला के जजमेंट से भी खराब है या उतना ही खराब है। ये एक ऐसा जजमेंट है जो हो ही नहीं सकता। जस्टिस पारदीवाला ने क्या बोला? उसने कहा कि आप सारे कुत्ते को उठाए और जगह में रखें। ये वाला जजमेंट क्या बोलता है? आप 5,000 कुत्ते सब जगह से उठाइए। अब 5,000 कुत्ते अगर सब जगह से हटाएंगे, रखेंगे कहाँ? 5,000 कुत्ते उठाने के लिए आपको चाहिए 50 शेल्टर। तो 50 शेल्टर के लिए आप निकालिए आधा एकड़ जमीन और डालिए। लेकिन वो तो है नहीं। आपके पास लोग चाहिए जो उठाने के लिए, और 5,000 हटाने से फर्क क्या पड़ेगा? 8 लाख कुत्ते अगर यहाँ हैं तो 5,000 कुत्ते उठाने से क्या होगा? लेकिन इससे अजीब जो ऑर्डर है वो ये है कि स्कूल से निकालो, हॉस्पिटल से निकालो, स्टेडिया से निकालो, बस स्टॉप से निकालो, रेलवे स्टेशन से निकालो। अब सवाल ये है कि अगर ये हो सकता था तो ये हो जाता, लेकिन आप यूजीसी ने एक ऑर्डर दिया जो ये जजमेंट यूजीसी के खिलाफ किया है। इन्होंने 3 महीने पहले ऑर्डर दिया था कि हर एक स्कूल और हर एक कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को एक एनिमल वेलफेयर सोसाइटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इससे वो जानवरों का ख्याल रख सकते हैं और दूसरा वो अच्छे सिटीजन बन जाएंगे। अब आपने कह दिया नहीं सब निकालो। अच्छा चलिए, आपने सबका बोल दिया, स्कूल से हटाओ, अस्पताल से हटाओ। मैं पूछती हूँ जाएंगे कहाँ ये जानवर? मान लो कि एक स्कूल में 15 जानवर हैं, जो स्टाफ भी देख रहा है, स्कूल भी देख रहा है, वहीं बड़े पले हुए हैं। आप 15 को अब निकालोगे, कहाँ निकालोगे? सड़क पर। जब आप सड़क पर निकालोगे तो ये कुत्ते जिन्होंने कभी देखा नहीं कि खाना कहाँ से आ रहा है, अब वो एक जो सड़क पर चलने वाला है उसके पीछे भागेंगे, वो डंडा निकालेगा, वो उसको काटेंगे। तो आपने बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए इस देश को बहुत ही अनसेफ कर दिया। अब तो देखिए कि आपके बाइट्स आई थिंक 100 गुना ज्यादा इस अगले हफ्ते में बढ़ जाएंगे। अब आप खुद देखते जाइए, क्योंकि आपने ये तो नहीं बोला कि जानवर जाएंगे कहाँ। आपके पास दिल्ली में
10,000 स्कूल हैं, छोटे से बड़े, हर एक में मान लो एक कुत्ता है, 2 कुत्ते हैं, क्योंकि कोई भी स्कूल नहीं है जहां नहीं है। उन 2 कुत्तों को अगर आप निकालेंगे तो 20,000। आइए डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। भारत मातानि मांकायाव खम्पुथुप याफारि दंगौ तेबिनि पान्दानि नारवाय अकरा जिनि हास देखिए, मैंने अपना भाषण में ऑलरेडी बोल चुका हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें वंदे मातरम जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ में रचित किया गया है, उसका 150 वर्ष पूरा होने वाला है और वो देशव्यापी में एक आंदोलन के रूप से सबको ये देश भावना ये संचालित हो। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।